मित्रों, बहुत समय के बाद मैं चेन्नई आया हूं। थोड़ी राजनीतिक बात भी करना चाहता हूं। மிகுந்த காலத்திற்கு பிறகு நான் சென்னை வந்திருக்கிறேன். ஆகையால் நான் அரசியல் பற்றியும் பேச விரும்புகிறேன். नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश भर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद, ये तीनों को समाप्त करने की एक लड़ाई लड़ी है नरेंद्र मोदी जी ने। भ्रष्टाचार और जातिवाद की बात बाद में करूंगा, पहले मैं परिवारवाद की बात करना चाहता हूं। देश भर में अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव आया, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और हर राज्य से परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में करारी हार सहन करनी पड़ी है। अब तमिलनाडु की बारी है। यहां पर भी एक परिवारवादी पार्टी चलती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नहीं चलती, परिवार को ही आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति करती है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर आने वाले चुनाव में जब चुनाव होगा तब परिवारवादी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और लोकतांत्रिक शक्तियां, डेमोक्रेटिक शक्तियां आगे बढ़ेगी। தமிழ்நாட்டிற்கு நான் வந்திருக்கும் இந்த வேளையிலே ஒரு விஷயத்தை நினைவுகூர விரும்புகிறேன். நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரசியல் களத்திலே வந்த பிறகு 3 வாதங்களுக்கு எதிராக அவர் போர்க்கொடி உயர்த்தினார். அதில் அவர் வெற்றியும் கண்டு வருகிறார். ஒன்று ஊழல்வாதம், அடுத்ததாக பரம்பரைவாதம், குடும்ப அரசியல், அதற்கு அடுத்தபடியாக சாதிய அரசியல். இதிலே முதலாவதாக நான் பரம்பரை அரசியல் என்ற குடும்ப அரசியலை பற்றி பேச விரும்புகிறேன். குடும்ப அரசியல் நடத்தி வரும் இங்கே சில கட்சிகள் அவர்களை போன்ற குடும்ப அரசியலை நாடு முழுவதும் நடத்தி கொண்டிருக்கும் தேசிய மாநில கட்சிகளுக்கு மக்கள் சரியான பாடத்தை புகட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே பாடம் தமிழ்நாட்டிலும் புகட்டப்படும் என்பது என் உறுதியான நம்பிக்கை. और मित्रों, बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस और डीएमके के मित्र भ्रष्टाचार की, करप्शन की बात करते, जिनके नेतृत्व में 2G स्कैम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनको क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए बोलने का? நண்பர்களே, எனக்கு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. காங்கிரஸ், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய இவர்களுடைய கூட்டாட்சி இருக்கிறதே, இவர்கள் ஊழலுக்கு எதிராக பேசுகின்றார்கள். ஊழலுக்கு எதிராக பேசுவதற்கு இவர்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது, அதிகாரம் இருக்கிறது? 2G அலைக்கற்றை மட்டுமல்லாமல் ஏகப்பட்ட கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஊழல்களை செய்தவர்கள், அவர்களுக்கு ஊழலுக்கு எதிராக பேச்சு பேச அவர்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पहले अपने परिवार में क्या हुआ है उसका कच्चा चिट्ठा एक बार देख लीजिए, कभी आप भ्रष्टाचार का नाम नहीं लोगे। ஊழல் குற்றச்சாட்டை நீங்கள் வைப்பதற்கு முன்பாக தயவு செய்து உங்கள் பின்னே உங்கள் குடும்பத்தை சற்றே திரும்பி பாருங்கள். அதற்கு பிறகு ஊழல் எது, ஊழல் இன்மை எது என்பது உங்களுக்கு புரியும். मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की दिशा में देश बहुत आगे बढ़ा है। 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाने की शुरुआत की है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर देश को एक सम्मान मिला है। पूरे विश्व का देश को देखने का नजरिया बदला है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब तमिल मछुआरों के सामने कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। उनकी सब कठिनाइयों को जानकर मोदी जी उनको वापस लाने के लिए सदैव तत्पर है। ஏழைகள் நலனிலே மோடி அரசு மிகுந்த கவனத்தை செலுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு மீனவர்கள் இன்று அச்சமில்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஒருவருக்கு கூட பாதிப்பு என்று இங்கே யாரும் வந்து கேட்பதில்லை. அதே போல உலக நாடுகள் இந்தியாவை பார்க்கும் கண்ணோட்டத்தையே மோடி அவர்கள் மாற்றி அமைத்திருக்கிறார். और मोदी जी जब श्रीलंका गए तब भी जाफना को नहीं भूले।
वहां तमिल बस्तियों में जाकर अपने भाइयों बहनों को मिले और उनको आवास देने का निर्माण का प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। लगभग 50,000 से ज्यादा तमिल परिवारों को लंका के अंदर आवास मिलने हैं और क्षतिग्रस्त मंदिरों को भी पुनर्निर्माण का काम शुरू होना है। யாழ்ப்பாணம் சென்ற மோடி அவர்கள் அங்கே கூட வீடு இழந்த சுமார் 50 லட்சம் தமிழர்களுக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுக்கும் ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு அங்கு பாதுகாப்பு யாழ்ப்பாண தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அங்கே இல்லங்கள் இருக்கின்றன. அதே போல உலகம் மோடி அவர்கள் காரணமாக உலகத்திலே இந்திய நாட்டுக்கு ஒரு நன்மதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதோடு நமக்கு பாதுகாப்பும் இப்பொழுது நல்ல பாதுகாப்பும் கிடைக்கிறது. और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों का हौसला भी मजबूत है। मैं परसों की ही बात करना चाहता हूं। पड़ोस के देश से भेजे गए 4 आतंकवादी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। उनको पकड़ लिया गया, रास्ते में रोका गया और चारों के चारों बहुत बड़े असले के साथ, बहुत हथियारों के साथ एनकाउंटर में मारे गए। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों का जो हौसला मजबूत हुआ है, मैं आज उन सभी सुरक्षा बलों के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित किया है। और मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, देश विकास के रास्ते पर आगे भी बढ़ेगा और दुनिया भर में भारत का नाम और सम्मान दोनों आसमान के छूते हुए नजर आएंगे। मैं आज यहां से तमिलनाडु की जनता को अनंत अनंत शुभकामनाएं आज जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं इसके लिए देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इनके साथी मंत्री सभी को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। भारत माता की जय।